question reads, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. What is the meaning of this sentence? इसका मतलब क्या होता है थोड़ा देखते हैं. देखिए, this is a tower, this is a tower and there are 2 points C and D. AB is the tower of height h meters and BC is the distance of the first point, BD is the distance of the second point. एक टावर है और टावर के 2 पॉइंट से आप देख रहे हो उस टावर को, तो दोनों एंगल्स मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है. यानी अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये दूसरे उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा. तो ये पहला वाला पॉइंट 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा वाला पॉइंट अगर 9 मीटर की दूरी पर है तो आपको ये बताना है कि टावर का हाइट 6 मीटर्स होगा. सिंपल प्रॉब्लम है. टावर का हाइट सिंपली आप निकाल सकते हो. दिस इज द टावर ऑफ हाइट h. ये पहले पॉइंट से थीटा एंगल दिखा रहा है, दूसरे पॉइंट से 90 माइनस थीटा. सर व्हाई डिड यू टेक 90 माइनस थीटा? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कहा है. तो अगेन आप एक बात देख सकते हो कि अपोजिट साइड आपको दिया है, बेस आपको दिया है और अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो tan थीटा है. इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. राइट एंगल ट्रायंगल ABC में लूँगा. व्हाट आई कैन से इज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू AB अपॉन BC. tan थीटा की वैल्यू होगी AB अपॉन BC. तो इसकी वैल्यू अगर आप करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है 4. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. आई विल कॉल इट एज फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट, अपोजिट साइड हमको पता है, बेस हमको पता है, तो दूसरा ट्रायंगल मैं ले लूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD. तो ABD राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD. AB upon BD. tan 90 minus theta is AB upon BD. So tan 90 minus theta is cot theta, AB is h and BD is 9. BD is 9. So this I will call it as equation number 2. Equation number 2. So equation 1 multiplied by equation 2. Equation 1 multiplied by equation 2 is tan theta multiplied by cot theta. Tan theta multiplied by cot theta will be equal to h by 4 multiplied by h by 9. तो बच्चों you know that cot theta means what? tan theta का reciprocal है. So tan theta is equal, tan theta multiplied by cot means what? Reciprocal is 1 by tan. तो h मल्टीप्लाइड बाई h इज h स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 36. सो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई विल गेट हियर इज 1 बाय 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 36. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट h स्क्वायर इज इक्वल टू 36. दैट मीन्स h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? h इज इक्वल टू 6 meters. And that is what you are asked to prove that height of the tower is 6 meter. So what I will say here is height of the tower is 6 meters. Height of the tower is 6 meter. That's all. Height of the tower is 6 meter. That's what we have proved. Simply it's very simple. Take 2 right angle triangle. The first one I have taken ABC. I got tan theta is equal to h by 4. Next I have taken second right angle triangle, again AB by, this is tan 90 minus theta is AB by BD. So cot theta is h by 9. So if I multiply the two equations, what I am going to get is h square by 36 is equal to 1. So h is equal to 6 meter. The next question reads here, a straight highway leads to the foot
of the tower, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed of 6 seconds. Later, the angle of depression of the car is 60 degree. Find the time taken to reach the foot of the tower. So this is the question asked to you. How to solve this question? What is the meaning of this question? First try to understand the meaning of the question. Solution you can do it yourself. Solution आप बड़े आसानी से कर सकते हो if you understand the question. इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए AB is representing a tower of height h meters. एक टावर है जिसका हाइट मैं कहूँगा h है. एक टावर है उसका हाइट है h और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और नीचे एक हाईवे है. ये जो है DB जो है वो तुम्हारा हाईवे बता रहा है. ये टावर है और ये हाईवे है और ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार है और ये पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड्स. यानी आदमी, ये टावर है, यहाँ पर आदमी खड़ा है और ये हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर एक कार आ रही है. कार आ रही है और आप ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति जो पहली बार देखता है तो कार उसको दिखाई देता है 30 डिग्री पर. ये जो आदमी खड़ा है उसको ये कार कितने डिग्री पर दिखाई देता है? ही कैन सी दैट द कार इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो आप देखिए कि दिस इज द लाइन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर उसका लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो उसको ये दिखाई दे रहा है 30 डिग्री पे. तो बच्चों Z फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. यानी एंगल MAD और एंगल ADB 30 होगा. और कार वो वहीं पर नहीं रहेगा. आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड्स के बाद क्या हो रहा है? कार इधर मूवमेंट कर रहा है, यानी थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है. वो टुवर्ड्स द टावर जा रहा है, इन द सेम लाइन, उसी लाइन में वो जा रहा है. टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, कार टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है. वो क्या कर रहा है? स्ट्रेट हाईवे पे. पहली बार जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसको 30 डिग्री पे दिखाई दिया. थोड़ी देर बाद वो कार आगे चला गया, तो आगे चला गया तो जो पहले 30 डिग्री पे उसको दिख रहा था वो धीरे से क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 30 से 60 हो गया. देखिए आप, ये पहले 30 था तो ये 60 हो गया. तो ये अगेन ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. ये 60 है तो ये भी 60 है. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एंगल MAC और एंगल ACB ये दोनों 60-60 हो जाएंगे. दिस इज 60, दिस इज 60. तो ये अल्टरनेट एंगल्स दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो अब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो आपको नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर हमको देखना है. तो एक बात हमको करना पड़ेगा कि हम इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार हम कहेंगे x मीटर्स, मतलब टावर के बॉटम से वो x मीटर की दूरी पर था और 6 सेकंड के बाद ये y मीटर पर हो गया. तो हमने वहीं पर लिखा है कि AB रिप्रेजेंट्स द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, BD रिप्रेजेंट्स द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ कार दैट इज x मीटर्स, मतलब पहले, और BC इज द डिस्टेंस ऑफ द आफ्टर 6 सेकंड्स और ये है y मीटर्स. तो अभी आपको क्या करना है? इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गए तो वी विल अप्लाई द tan थीटा. वाई आई एम अप्लाइंग tan थीटा? बिकॉज अपोजिट साइड और बेस है एंड द ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज व्हाट? tan थीटा. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADA, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 60 की वैल्यू होगी, tan 60 की वैल्यू होगी AB बाय BC. tan 60 की वैल्यू होगी AB बाय BC. दिस इज AB एंड दिस इज BC. तो tan 60 यानी होगा √3. tan 60 की वैल्यू होती है √3. AB की वैल्यू होती है H और BC की वैल्यू होती है Y. सो BC इज हाउ मच? Y. सो चिल्ड्रन, Y will be equal to H by, if I cross multiply Y, I can take it here and √3 I can take it here. So Y will be equal to H by √3 meters. H by √3 meters. What is the value of Y? Y is H by √3 meters. Similarly, if I try to find out the distance, this one, here I have to take the right angle triangle ABC. Here this is the opposite side and this is the base. So what I'll do is, in right angle triangle ABD, in right angle triangle ABD, what I'll do is tan 30 degree
tan 30 degree is equal to AB upon BD. AD upon BD. AD upon BD. Tan 30 value is 1 by root 3 and AB value is H and BD is, we have taken it as Y. What we have done is BD we have taken it as X. Sorry, you cross multiply here, what I get is X is equal to root 3x. I will get root 3h. Sorry, the value of H is X is, this is first equation and this is my second equation. X is equal to h root 3 I will get, y is equal to h by root 3 I will get. Suppose if I want to calculate this much, that is, this is the time, this is the distance, first distance and this is the second distance. So if I want a DC, if I want only DC, then what? DC is equal to x minus y. This distance minus this distance, and x is equal to how much? X is equal to root 3h minus y is equal to h by root 3. h by root 3. So if you take the LCM here, इसका LCM अगर आप ले लोगे तो this is root 3 and into root 3 you will have to multiply here. So you will get here 3h minus 1h and that is equal to DC is equal to 2h upon root 3. 2h upon root 3 meters. So if the car has to travel, if this distance, to travel this distance, the car takes how much time? 6 seconds it takes. So to travel y, how much it will take? To travel the distance of DC, that is, it takes 2h by root 3. Then, so or it in 6 seconds, I repeat again, in 6 seconds it travels a distance of 2h by root 3. So if it has to travel a distance of this much, that is y, how much time it will take? So what I will say here is, to travel a distance of DC, it takes 6 seconds, or I can say in 6 seconds it travels a distance of this much. So for distance of BC, how much time it will take? How much time it will take? That is what I have to find out. How much time it has to take? See, that means what? See, for DC, if it has, for traveling the distance, or in 6 seconds it travels a distance of DC, that is in 6 seconds if it does, then in how much? For BC how much? For BC how much? यानी अगर D से लेके C तक जाने के लिए 6 सेकंड लगता है, तो C से लेके B तक जाने के लिए कितना लेगा? तो अब इसको क्या करेंगे आप? D से लेके C तक यानी क्या है? 2h बाय रूट 3 होगा बच्चों. D से लेके DC का लेंथ कितना दिया है? 2h बाय रूट 3 दिया है, ये 6 है. और ये BC हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो है h बाय रूट 3 है. BC की वैल्यू कितनी है? देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. BC यानी y है, BC यानी y है, और वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि BC यानी y है, y इज इक्वल टू h बाय रूट 3. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 6 इंटू रूट 3 बाय 2h मल्टीप्लाइड बाय h बाय रूट 3. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो h कैंसल्स विथ h, रूट 3 कैंसल्स विथ रूट 3, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी 3 सेकेंड्स का टाइम लेगा.
3 seconds। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज हाउ मच? 3 seconds। सो व्हाट आई राइट हियर इज टाइम टेकन टू रीच the foot of the tower is 3 seconds। The time taken by the car of course। ओके, तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि हमने tan थीटा यूज़ किया यहाँ पर। tan थीटा यूज़ करके व्हाट वी डिड इज आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y। फिर यहाँ पर tan 30 यूज़ करके मैंने क्या किया, x की वैल्यू कैलकुलेट की। तो बाद में d से लेके c तक जाने के लिए, यानी दिस डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी d से लेके c तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, x माइनस वाई करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई आप करोगे तो d से लेके c तक का डिस्टेंस आता है 2h/√3, यानी d से लेके c तक जाने के लिए d से फ्रॉम d टू c इट टेक्स 6 सेकेंड्स। सो b टू c कितना लगेगा, तो 6/dc मीन्स हाउ मच 2h/√3 और bc मीन्स हाउ मच h/√3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली व्हाट वी गेट इज 3 सेकेंड्स हमको लगता है। यानी सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमको हाइट ऑफ टावर भी पता नहीं, इस बार तो हमको हाइट ऑफ टावर भी नहीं पता। हम यहाँ पर खड़े हैं, टावर का हाइट हमें पता नहीं है, फिर भी ऊपर खड़ा हुआ आदमी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली बार बोलता है यार 30 डिग्री पे मुझे ये कार दिखाई दे रहा है, दूसरी बार बोलता है 6 सेकंड के बाद मुझे कार 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, फिर भी हम बता सकते हैं कि ये कार कितने सेकंड में यहाँ पर पहुँचेगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसीलिए मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आगे आपको कहीं भी सीखना हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपको काम आएगा। सो बच्चों, तो इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल 16 प्रॉब्लम्स इसके अंदर थे और सारे 16 के 16 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं और आई होप यू विल एंजॉय ऑल द वीडियोस और सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आप कर लीजिए। सो माय टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हमारा अपकमिंग वीडियोस होगा कंस्ट्रक्शंस के ऊपर।